anything that is anything that is uh, हम लोग अभी यहाँ पर कैंटो 1 चैप्टर 8 टेक्स्ट 44 पढ़ रहे हैं पर anything that is enchanting in the world is said to be a representation of the Lord. The conditioned souls who are engaged in trying to lord it over the material world are also enchanted by his mystic powers. But his devotees are enchanted in a different way by the glories of the Lord, and his merciful blessings are upon them. His energy is displayed in different ways, as electrical energy works in manifold capacities. Srimati Kunti Devi has prayed to the Lord just to enunciate a fragment of his glories. All his devotees worship him in that way by chosen words, and therefore the Lord is known as Uttama Shloka. No amount of chosen words is sufficient to enumerate the Lord's glory, and yet he is satisfied by such prayers as the Father is satisfied even by the broken linguistic attempts of the growing child. The word Maya is used both in the sense of delusion and mercy. Herein, the word Maya is used in the sense of Lord's mercy upon Kunti Devi. हम्म हम्म, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये माया जो है ना वो कई बार एक्चुअली भगवान की जो माया है वो एक्चुअली मर्सी की तरह ही एक्ट करती है हम्म क्योंकि वो नहीं तो आप यहीं फंसे रहेंगे इसी हम्म लोक में। इस लोक में अगर आपको वो ना दिखाया जाए ना, मतलब अगर आपको मतलब ट्रेजेडी और जैसे अभी हम कह रहे थे ना जो परेशानियां ना दिखाई जाए तो आप हमेशा यहीं रहना चाहोगे। आप हम्म कहोगे कि हाँ अच्छा ही है, मेरा फिर से पुनर्जन्म यहीं पे हो जाए वापस, यही हम्म मैं करता रहूं, हम्म अगर आपको कोई दुख वगैरह ना हो। हम्म ये भी अच्छा था कि मतलब कि भगवान जो है उनके मतलब कि उनको मतलब इतना कुंती देवी ने इतना ग्लोरीफाई भी किया भगवान को, लेकिन मतलब ही इज प्लीज्ड बाय इट, बट ही इज मतलब कि वो बिल्कुल शांत है वो। जैसे मतलब जैसे कई लोग यहाँ पे तो फ्लैटर हो जाते हैं ना, मतलब जो जैसे जो मेटीरियलिस्ट लोग हैं ये लोग, इनको आप जरा सा भी फ्लैटर करो तो तुरंत बिल्कुल फूल जाते हैं। तो भगवान अपना को संतुलन नहीं खोते भगवान। बिल्कुल। हम्म हम्म नहीं वरुण, यहाँ पे जो ये सेंटेंस आया है ना कि नो हम्म अमाउंट ऑफ chosen वर्ड्स इज sufficient to enumerate the Lord's glory, and yet he हम्म is satisfied by such prayers as the Father is satisfied even by the broken linguistic attempts of the हम्म growing child। हम्म, ये चीज बहुत सही है। और वरुण वैसे भी एक बात और भी है ना कि जैसे एक जगह कहा भी गया है ना कि भगवान वर्ड्स से ज्यादा उसके पीछे जो भाव है उनको देखते हैं। हाँ तो वह वर्ड्स अगर उतने सुटेबल नहीं भी हैं और अगर आपका भाव निश्चल है तो फिर वो उस चीज को कंसीडर करते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ऐसे ही मुझे वो सुदामा जी का मेरे को बड़ा याद आता है उस मामले हम्म में। सुदामा जी जो थे वो बेचारे हम्म चिवड़ा ले आए थे और हाँ देना भी नहीं चाह रहे थे, उनको शर्म आ रही थी कि भगवान हाँ, मतलब वो द्वारकाधीश हैं, ही इज द किंग ऑफ एवरीथिंग, एंड हम्म उनको मैं क्या ये चिवड़ा देने वाला हूँ। और भगवान हम्म ने उनके हाथ से मतलब छीन लिया, हम्म, छीन के उसको खाने लग गए वो। तो भगवान आप सही कह रही हैं, भगवान बिल्कुल। को ना भाव जो है वो बहुत हम्म प्रिय है। बिल्कुल। वरुण नेक्स्ट मैं पढ़ूं। हाँ इस पर ये मैं बस। ताम बाढ़ ताम बाढ़ मृत्यु मृत्युपा मंत्र प्रविश्य गजसा वयम स्त्रीश्च स्वपुरम यास्यन प्रेमणा राज्ञा निवारिता। ट्रांसलेशन। Thus, accepting the prayers of Srimati Kunti Devi, the Lord subsequently informed other ladies of his departure by entering the palace of Hastinapur. But upon preparing to leave, he was stopped by King Yudhishthira, who implored him lovingly. Purport:
No one could make Lord Krishna stay at Hastinapur when he decided to start for Dwarka. But the simple request of King Yudhishthir that the Lord remain there for a few days more was immediately effective. This signifies that the power of King Yudhishthir was loving affection, which the Lord could not deny. The Almighty God is thus conquered only by loving service and nothing else. He is fully independent in all his dealings, but he voluntarily accepts obligations by the loving affection of his pure devotees. Hmm. अछूता है लॉर्ड कृष्ण, लॉर्ड जो है वो ही इज नॉट कॉन्कर्ड बाय एनीथिंग, बट ही Hmm. इज कॉन्कर्ड बाय द लव एंड लविंग सर्विस एंड नथिंग एल्स। Hmm. बिल्कुल। लॉर्ड की बड़ी ग्रेटनेस है, Hmm. और उनको पता लग जाता है, वो सबके हृदय में बैठे हुए हैं ना, तो उनको पता लग बिल्कुल। जाता है कि तो ये पता है। उनको होता ही है कि Hmm. वो जो कोई सर्विस कर भी रहा है, या जैसे उनके पास आया है, किस लिए आया है, किस कंडीशन में आया है, Hmm. भगवान को सब पता होता है। Hmm. बिल्कुल। He is fully independent in all his dealings, but he voluntarily accepts obligations by the Hmm. loving affection of his pure devotee. Fully independent है भगवान, Hmm. वो कोई नहीं बांध सकता, बट लविंग अफेक्शन से वो बंधने को तैयार है। ऐसे बिल्कुल। ही वो श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान एक्चुअली तो भगवान पूरे टाइम बंधने के लिए रेडी हैं, ये Hmm. तो हम ही लोग, जैसे आप कहती है ना, हम ही लोगों में कमी है। बिल्कुल। ये तो है ही है। 46 Hmm. पढ़ूं या आप कुछ कहते हैं? हाँ 46 पढ़ो। वरुण जी व्यासा। हम्म, हम्म, जी जी नहीं आए क्या? पापा आए थे बीच में, आई थिंक रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर गए हैं, अभी अच्छा शायद फिर अच्छा से ज्वाइन अच्छा। करेंगे। ओके ओके। क्योंकि कल उनकी व्या तबीयत भी थोड़ी कम ठीक थी, अच्छा। कि गले में कुछ हो मुझे प्रॉब्लम लग रही थी। अच्छा। हम्म। व्यास व्यासादेर ईश्वरेज्याहिज्ञाये कृष्णे नादभुता कर्मणा प्रबोधितोपितिहासैर न बुद्ध्याता शुचार्पिता। हम्म। Translation: King Yudhishthir, who was much aggrieved, could not be convinced, despite instructions by great sages headed by Vyas and Lord Krishna himself, the performer of superhuman feats, and despite all historical evidence. हम्म। Purport: The pious King Yudhishthir was mortified because of the mass macabre of human beings in the battle of Kurukshetra, especially on his account. Duryodhan was there on the throne and he was doing well in his administration. And in one sense, there was no need of fighting. But on the principle of justice, Yudhishthir was to replace him. The whole clique of politics centered around this point, and all the kings and residents of the whole world became involved in this fight between the rival brothers. Lord Krishna was also there on the side of King Yudhishthir. It is said in the Mahabharata Adi Parv 20 that I think 640 million men, हम्म। या जैसे कहते हैं 64 lakh हैं, आई थिंक, हम्म। 6 crore 6 crore 40 lakh were killed in the 18 days of the Battle of Kurukshetra, and some hundreds of thousands were missing. Practically, this was the greatest battle in the world within 5,000 years. This mass killing simply to enthrone Maharaj Yudhishthir was too mortifying. So he tried to convince with evidences from histories by great sages like Vyas and the Lord himself that the fight was just because the cause was just. But Maharaj Yudhishthir would not be satisfied, even though he was instructed by the greatest personalities of the time. Krishna is designated herein as the performer of superhuman actions, but in this particular instance, neither he nor Vyas could convince King Yudhishthir. Does it mean that he failed to be superhuman actor? No, certainly not.
The interpretation is that the Lord as Ishwar or the super soul in the hearts of both King Yudhishthir and Vyas performed still more superhuman action because the Lord desired it. As super soul of King Yudhishthir, he did not allow the king to be convinced by the words of Vyas and others, including himself, because he desired that the king hear instructions from the dying Bhishma Dev, who was another great devotee of the Lord. The Lord wanted that at the last stage of his material existence, the great warrior Bhishma Dev see him personally and see his beloved grandchildren, King Yudhishthir, etc., now situated on the throne, and thus pass away very peacefully. Bhishma Dev was not at all satisfied to fight against the Pandavas, who were his beloved fatherless grandchildren. But the Kshatriyas are also very stern people, and therefore he was obliged to take the side of Duryodhan because he was maintained at the expense of Duryodhan. Besides this, the Lord also desired that King Yudhishthir be pacified by the words of Bhishma Dev, so that the world would see that Bhishma Dev excelled all in knowledge, including the Lord himself. हम्म यही भगवान है ना, मतलब किंग युधिष्ठिर को मतलब वो बहुत ज्यादा वो पछतावा हो रहा है कि हम्म भाई इतने लोग मर गए हैं, तो लेकिन हम्म वो मतलब व्यास देव और लॉर्ड की बात से भी नहीं सेटिस्फाइड हो रहे हैं। एंड हम्म लॉर्ड चाहते हैं कि ताकि भीष्म देव जो हैं, भीष्म पितामह, उनका हम्म मतलब उनसे ही मिलें। और फिर ऑफ कोर्स वो लॉर्ड कृष्णा विल आल्सो बी देयर, तो भीष्म देव जो है वो लॉर्ड कृष्णा को भी मरने से पहले देखेंगे, तो ही विल गेट हम्म फुल लिबरेशन। हम्म, तो लॉर्ड कृष्णा जो है, या बिल्कुल। इसमें देखा जाए तो भीष्म पितामह की जो कंडीशन थी वो तो बहुत क्रिटिकल थी। जैसे हम्म आप दिल से किसी और तरफ हो, लड़ किसी और हम्म तरफ से रहे हो, और आपको ये पता है कि जिस तरफ से हम लड़ रहे हैं वो गलत है, फिर भी हमें लड़ना है। तो उनकी बहुत हम्म, क्रिटिकल कंडीशन थी। बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है, सही हम्म कह रहे हैं। हम्म यही सब इसी टाइप की सिचुएशन, तो ये मायावादी जो है ना, दुर्योधन जैसे हाँ, लोग, इसी का तो एक्सप्लॉइटेशन कर डालते हैं ना। हम्म, लेकिन बिल्कुल। तभी आपको बड़ा हम्म वो भगवान से बड़ा जोड़ना होता है। हम्म Not that Bhisham Dev himself was a very great devotee of Lord Krishna, Bhisham हम्म Pitama. हम्म, बिल्कुल। वरुण नेक्स्ट पढ़े। हाँ पढ़िए प्लीज। आह राजा, धर्म धर्म अश्रिचंत्यन सुहृदाम वदम प्राकर नेमात्यम नेमात्यमना विप्राह स्नेह मोह वशम गतः। Translation. King Yudhishthir, son of Dharma, overwhelmed by the death of his friends, was aggrieved just like a common materialistic man. O sages, thus deluded by affection, he began to speak. King Yudhishthir, though he was not expected to become aggravated like a common man, became deluded by worldly affection by the will of the Lord, just as Arjuna was apparently deluded. A man who sees knows well that the living entity is neither the body nor the mind, but is transcendental to the material conception of life. The common man thinks of violence and non-violence in terms of the body, but that is a kind of delusion. Everyone is duty bound according to one's occupational duties. A Kshatri is bound to find for the right cause, regardless of the opposite party. In such a discharge of duty, one should not be disturbed by annihilation of the material body, which is only an external dress of the living soul. All this was perfectly known to Maharaja Yudhishthira, but by the will of the Lord he became just like a common man, because there was another great idea behind this delusion. The king would be instructed by Bhishma, as Arjuna was instructed by Lord himself. एक तरह से मतलब लॉर्ड ये भी चाह रहे हैं कि भीष्म देव जो हैं, ऐसे तो Hmm, अदरवाइज, नहीं तो भीष्म देव तो बिल्कुल ही फिर जैसे द्रोणाचार्य का रिडेम्पशन नहीं हुआ, तो वैसे ही भीष्म भीष्म पितामह का भी रिडेम्पशन नहीं होता। उनको तो हमेशा यही मानते कि भाई वो कौरवों की तरफ से ही लड़े बस।
लेकिन यहाँ पे तो इसको पढ़ के तो ऐसा लगता है कि लॉर्ड खुद चाह रहे हैं कि भाई भीष्म देव मेरे बहुत बड़े डिवोटी हैं, तो हम्म। वो युधिष्ठिर को इंस्ट्रक्ट करें जैसे मैंने अर्जुन को इंस्ट्रक्ट किया है। हम्म। ऑलमोस्ट लास्ट वाले उसमें भी ऐसे ही लग रहा था कि भाई चाह रहे हैं लॉर्ड कि ये सबको बताना कि भाई भीष्म देव भी उनसे कम नहीं थे। भीष्म देव हम्म। एक्सेल्ड ऑल इन नॉलेज हम्म। इंक्लूडिंग द लॉर्ड हिमसेल्फ। हम्म। मतलब बिल्कुल। क्या बड़ा। हम्म। भगवान जो है ना, वो डिवोटी के बारे में कहा हुआ है ना, माई डिवोटी शैल नॉट पेरिश। वो हम्म। भीष्म देव भी उनके डिवोटी है ना। अब ऐसा लगेगा, बिल्कुल आपने जैसे सही कहा कि भीष्म देव जो है ऑपोजिट गलत कैंप में से भी उनको लड़ना हम्म। पड़ा। हम्म। वो जिस तरह भी फंस गए थे, बट तब हम्म। भी उनका देखिए ना, उनको मतलब उनको उनकी कीर्ति बढ़ाने की ही कोशिश वो कर रहे हैं भगवान। इस बिल्कुल। तरह से अरेंजमेंट कि उनकी भी कीर्ति बढ़े। हम्म। भीष्म देव की ही शैल नॉट हम्म। पेरिश। हम्म। भगवान जो है हम्म। अपने डिवोटीज का बड़ा मतलब ख्याल रखते हैं। बिल्कुल। कॉमन मैन। हम्म। इसमें वरुण ये सेंटेंस जो है कि इन सच discharge of duty, one should not be disturbed by annihilation of the material body, which is only an external dress of the living soul. All this was perfectly known to Maharaja Yudhishthir, but by the will of the Lord, he became just like a common man because there was another great idea behind this delusion. The king would be instructed by Bhishma as Arjuna was instructed by Lord himself. हाँ, ये चीज समझ में आ रही है। हम्म, इन चीजों को भी वरुण अभी हम लोग को बहुत अंदर तक ले जाना पड़ेगा ना, बहुत कि मतलब सही कह रहे हैं। हाँ अभी मतलब इसको और समझना पड़ेगा और अंदर तक हम्म, ले जाना पड़ेगा हम्म, कि सोल इज मोर इम्पोर्टेंट देन बॉडी। हम लोग तो अभी बॉडी तक ही सीमित हैं पूरा। हम्म, हम्म। पूरा बिल्कुल हम्म। सही कह रहे हैं आप। है ना, अभी इस पे बहुत सोल बिल्कुल तक सही पूरा कह रहे करना हैं। पड़ेगा। हम्म। अच्छा वरुण, मैंने जितने भी मैं बुक्स पढ़ती हूँ, जितनी भी मैं ऑडियो वगैरह सुनती हूँ, तो वरुण उसमें मैं ये देखती हूँ कि सब में ये दिखा है, उसमें सब में मुझे यही कंफ्यूजन मिलता है वरुण, कि जो लोग सोल कॉन्शियस हो जाते हैं उनके नॉलेज का लेवल बिल्कुल अलग हो जाता है। हाँ, ये ये चीज तो है। है। हाँ, और उनको सारी चीजें बहुत डीप में और बहुत आगे तक की पूरी पता हो जाती हैं। हाँ, लेकिन अब वो ये प्रैक्टिस करने पहले कि हम कितने ज्यादा सोल कॉन्शियस हो रहे हैं वो काम है। यस, उसके लिए भी ये वरुण अब हमको लगता है कि जैसे बच्चों की तरह एफर्ट्स ही करने पड़ेंगे। है ना, जैसे बच्चे कोई नई लैंग्वेज सीखते हैं तो उसके लिए पहले अल्फाबेट्स लिखते हैं, फिर वर्ड्स लिखते हैं, फिर यस, सेंटेंस बनाते हैं, फिर अपने यस, विचारों को express कर पाते हैं। उसी तरह से सोल कॉन्शियसनेस की तरह हम लोगों को भी छोटे 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 स्टेप जब करेंगे तो धीरे धीरे वो चीज फिर अचीव होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप है मौसी। ना वरुण, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप मौसी, ये क्योंकि चीज एक्चुअली ऐसे ही चक्कर करना क्या है कि पड़ेगा। क्योंकि अभी तक हमारी जो, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, ये तो मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि जो अभी तक हमारी सारी नॉलेज बॉडी ओरिएंटेशन में है ना, सोल ओरिएंटेशन में है ही नहीं। लेकिन हम्म। एक बार अगर आपकी सोल बेस्ड नॉलेज हो जाए ना, तो फिर हम्म। तो आपको फिर बॉडी वाली रिलेटेड चीजें तो आपको फिर ज्यादा बॉदर भी नहीं करेंगी, और फिर आप बड़ा अलग तरह से एक्ट करेंगे। बहुत हम्म। एडवांस नॉलेज से एक्ट करेंगे, सोल के सही लेवल है। से एक्ट करेंगे। हम्म। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। हम्म। लेकिन वो बिल्कुल ये भी बात आपकी सही है कि वो मतलब कर करके ही होता है। मतलब धीरे ये धीरे ना छोटे चीजें छोटे स्टेप। अच्छा छोटे वरुण, हमने छोटे। एक चीज और देखा कि इसमें जहां कहीं भी भगवान बहुत ऊंची बात करते हैं वहां गायों को भी इंक्लूड करते हैं। गायों का बड़ा मतलब जैसे पशु तो बहुत से हैं लेकिन भगवान गायों को दूसरा एक स्थान दे रहे हैं। बिल्कुल, हम्म। बिल्कुल। तभी वो हम्म। हम्म। मतलब खुद खुद भी ग्वाला भी बने। हाँ। बचपन में गायों का दूध भी, माखन भी, हर चीज। हाँ। मतलब गाय से बहुत, यू आर एब्सोल्युटली राइट, गाय से हम्म। बहुत अटैचमेंट है। हम्म। मतलब भगवान का एसोसिएशन सुरभि काऊ से, बिल्कुल आपने सही कहा।
मतलब ऐसे तो सब एनिमल से है बट काउस से स्पेशली यू आर राइट। बिल्कुल। 48। हम्म 40। अहो मे पाश्यात्ता ज्ञानम हृदि रुद्धम दुरात्मना पार क्या किस क्यास्यैव देहस्य भाव्यो मे कषौ हि निहता। King Yudhishthir said, "O my lord, I am the most sinful man. Just see my heart, which is full of ignorance. This body, which is ultimately meant for others, has killed many, many phalanxes of men." Purport. A solid phalanx of 21,870 chariots, 21,870 elephants, 1,09,650 infantry, and 65,000 cavalry is called an Akshauhini, and हम्म many Akshauhinis were killed on the battlefield of Kurukshetra. Maharaj Yudhishthir, as the most pious king of the world, takes for himself the responsibility of killing such a huge number of living beings because the battle was fought to reinstate him on the throne. This body is, after all, meant for others. While there is life in this body, it is meant for the service of others. And when it is dead, it is meant to be eaten by dogs or jackals or maggots. He is sorry because for such a temporary body, such a huge massacre was committed. हम्म इसमें दो बातें मेरे को लगती हैं। एक तो किंग युधिष्ठिर महाराज को वही लेमेंटेशन हो रहा है जो बैटल के एंड में, जो अर्जुन को बैटल के बिगिनिंग में हो रहा था कि हम इन लोगों को मारने के लिए चले आए हैं जस्ट कि ताकि मतलब ये राजपाट के लिए। दूसरी चीज, ये वाली चीज जो है ना, ये बड़ी हार्ड है। द बॉडी इज आफ्टर ऑल मेंट फॉर अदर्स। मतलब हम्म कि while there is life in the body, it is meant for the service of others। ये जो चीज है ना, ये बड़ा हार्ड है रियलाइज हम्म करना। यही अगर आदमी अपना ओरिएंटेशन, एक्चुअली अदर्स क्या है, एक्चुअली तो लॉर्ड कृष्णा के लिए। द बॉडी इज मेंट फॉर द सर्विस ऑफ लॉर्ड कृष्णा। एंड हम्म धीरे धीरे जब आप लॉर्ड कृष्णा की सर्विस करने लगेंगे तो लॉर्ड कृष्णा सबके अंदर हैं, तो हम्म सबके अंदर। लेकिन ये बड़ा हार्ड है ये रियलाइज करना कि लाइफ इज मेंट हम्म, फॉर द सर्विस ऑफ अदर्स। बिल्कुल। ये धीरे धीरे वरुण हम लोग को आगे समझ में आएगा प्रैक्टिकली। यस। हम्म वरुण मैं नेक्स्ट पढ़ रही हूँ। बिल्कुल। हाँ। बाल द्विज सुहृ मित्र पितृ भातृ गुरु द्रुहा न मे ईशान्य रयान मोक्षो हपि वर्षा युता युतैः। I have killed many boys, brahmanas, well-wishers, friends, parents, preceptors, and brothers. Though I lived millions of years, I will not be relieved from the hell that awaits me for all these sins. Whenever there is a war, there is certainly a massacre of many innocent living beings, such as boys, brahmanas, and women, whose killing is considered to be the greatest of sin. They are all innocent creatures, and in all circumstances, killing of them is forbidden in the scriptures. Maharaja Yudhishthir was aware of these mass killing. Similarly, there were friends, parents, preceptors also on both sides, and all of them were killed. It was simply horrible for him to think of such killing, and therefore he was thinking of residing in hell for millions and billions of years. बताइए जैसे कि इसलिए मुझे लगता है कि जैसे हम्म जब युद्ध शुरू हुआ तो अर्जुन ने तो जो उनको प्रॉब्लम हम्म फील हो रही थी वो उन्होंने श्री कृष्ण भगवान से कही। श्री कृष्ण भगवान ने उनको सोल्यूशन भी दिया। लेकिन इस हम्म पैसे को पढ़ने के बाद ऐसा समझ में आ रहा है कि युद्ध से पहले अर्जुन की जो स्थिति थी हम्म स्टिल महाराज की अभी भी वही स्थिति है।
अभी वही स्थिति है, है ना? बिल्कुल यही मुझे लगता है, यही मुझे हाँ, लगता है। कि उनको वो पूरा अंदर से गिल्ट है। और जबकि भगवान हम्म। श्री कृष्ण ने शुरू में ही अर्जुन को वो बात बता दी, तो अर्जुन उस चीज हम्म। से मुक्त हो गए। लेकिन युधिष्ठिर जी को पूरा, महाराज को उस बात का बहुत ज्यादा दुख है, अंदर तक दुख है। एंड दिस इज हम्म। इसमें ये मेंशन किया गया है, इट वाज सिंपली हॉरिबल फॉर हिम टू थिंक ऑफ सच किलिंग एंड देयरफॉर ही वाज थिंकिंग ऑफ रिसाइडिंग इन हेल फॉर मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स। हम्म। अच्छा वरुण, एक चीज और मुझे समझ आ रही है कि हम्म। अभी तक क्या हो रहा है कि हम लोग ये समझते हैं कि जैसे मान लो एक तरह से वरुण, श्री कृष्ण भगवान ने ही इन लोगों को इनकरेज किया कि ये युद्ध बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है, आप लोग को करना पड़ेगा, हम्म। है ना? तो इन लोगों ने भगवान के कहने से कर तो दिया, लेकिन युधिष्ठिर को अभी भी उस बात की ग्लानि है अंदर से, है ना? अब ये बिल्कुल चीज है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल हाँ, सही। तो एक्चुअली इसमें अगर इसलिए आप देखें तो अर्जुन को नहीं वो फील हो रहा है, अर्जुन हाँ, को फिर भी क्लैरिटी आ गई है, तो अर्जुन को अभी नहीं ग्लानी फील हो रही है, बट युधिष्ठिर महाराज को ग्लानी अभी भी फील हो हाँ, रही है, क्योंकि उनको ऐसा अभी भी लग रहा है, देखिए ना, उनको अभी भी लग रहा है कि मेरे राजपाट को, मुझे, मेरे को थ्रोन पे बिठाने के लिए ये किया गया है, ये जबकि सब। ये युद्ध इसलिए नहीं किया गया था, ये युद्ध भगवान कृष्ण के सेटिस्फेक्शन के लिए किया गया था। तो हम्म, ये आप वही ना, जब तक आपको लगेगा कि ये मेरे लिए किया गया है, मैं इम्पोर्टेंट हूँ, तब तक आपको ये होता रहेगा। बट इट इज हम्म, इजियर सेड देन डन, मतलब ये तो, हम्म, और ये तो युधिष्ठिर महाराज खुद बहुत ही पायस हैं, बहुत ज्यादा पायस हैं। ये खुद हम्म, राजसूय यज्ञ भगवान कृष्ण के बिल्कुल फुल टाइम उनके प्रोटेक्शन के अंडर में हैं, बट हम्म, और जैसा हम्म, भी थोड़ी देर पहले पहले भी बताया ना, ये तो भगवान ने खुद ही अपनी माया से उनको बिल्डर कर दिया है, ताकि वो भीष्म देव का उद्धार कराना चाह रहे हैं। बट हम्म, हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हम्म। तो एक वरुण, चीज इसका और एक इसमें मतलब लेकिन, ये भी हाँ। निकला कि हम्म। वर्तमान समय में जो हमें लग रहा है कि बहुत गलत हो रहा है, इसके पीछे इंटेंशन भगवान का बहुत दूरगामी है। हम्म। वो हम्म। चीज है। बिल्कुल। देखा बट ये जाए ना तो, एक चीज, जी। सॉरी आप go ahead। हाँ, देखा जाए तो भाई युधिष्ठिर का भी बॉडी कंसेप्शन नहीं खत्म हुआ। हम्म, एक तो ये चीज है, और ऐसा लगता है, और दूसरा ये जो तुम कह रहे हो कि भाई भगवान कृष्ण ने उनको डिल्यूट कर दिया है, क्या नाम है, ताकि वो हम्म, भीष्म देव के पास आ करके हम्म, उनसे, क्या नाम है, शिक्षा ग्रहण कर सकें। हम्म, मतलब अब ये वो उनको, क्या नाम है, मतलब, बट एक तरह से ये देखा जाए कि भाई बॉडी कंसेप्शन जो है वो थोड़ा टफ है, क्या नाम है, उससे निकल हम्म, पाना, बट इम्पॉसिबल तो नहीं है बिल्कुल। हम्म, और एटलीस्ट इफ यू कीप ऑन ट्राइंग तो द लॉर्ड विल हेल्प। हम्म, अब ये वरुण वाली बात भी सच है कि वो भगवान चाहते थे कि, क्या नाम है, वो भीष्म देव के पास आए और उनसे ज्ञान ग्रहण करें। हम्म, जी। ऐसे ही लगता है। इतना तो उनको पता था कि, क्या नाम है, सोल जो है वो परमानेंट है, क्योंकि वो कह रहे हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स मुझे हेल में रहना पड़ेगा। हम्म, तो इसका हम्म। मतलब कि मिलियंस ऑफ ईयर्स वो हेल में रहने के बाद में वो निकल आएंगे बाहर, मतलब सोल इज नॉट फिनिश्ड। जी। हम्म, आगे पढ़ो तुम लोग। 50 15 नैनो राज्ञा प्रजा भ्रातुर्धर्मयुद्धे वधो द्वेषम् इति मे न तु बोधाय कल्पते शासनं वाचा। हम्म, Translation: There is no sin for a king who kills for the right cause, who is engaged in maintaining his citizens. But this injunction is not applicable to me. Purport: Maharaj Yudhishthira thought that although he was not actually involved in the administration of the kingdom, which was being carried on well by Duryodhan without harm to the citizens, he caused the killings of so many living beings only for his personal gain of the kingdom from the hands of Duryodhan. The killing was committed not in the course of administration, but for the sake of self-aggrandizement, and as such he thought himself responsible for all the sins. हम्म,
तो वहां पे ये भी लगता है इसमें कि कितने महान होते थे उस समय के किंग युधिष्ठिर वगैरह, किंग कितने महान होते थे। ऐसे ही नहीं बैटल में कूद पड़ते थे, वॉर स्टार्ट कर देते थे। हम्म तो आजकल के लोगों को देखिए जो हम्म पॉलिटिशियंस हैं, मतलब वो बस जब देख लिया मतलब बस वॉर चालू कर देंगे, सिर्फ अपने मतलब। हम्म लेकिन यहाँ पर एक चीज बड़ा बैफिल कर रही है कि भाई जब आप कृष्ण भावनामृत में हैं, भगवान ने आपसे कहा है युद्ध करने के लिए, तो दैट इज मैटर शुड बी ओवर, यू शुड हैव नो लिमिटेशन एट ऑल। हम्म हम्म। ये चीज जो है ना, ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है कुछ सेंस में। एक्सेप्ट की क्रम में तुम्हारी वाली बात ये है कि भगवान ने ही डिल्यूट किया उनको, ताकि वो भीष्म पितामह को फेवर करने के लिए हाँ। कि हम जो हैं, मैं उनके पास मतलब वो खुद भी जाएं और ये लोग जो हैं इनको उनसे ज्ञान भी मिले। हम्म। अदरवाइज युधिष्ठिर was युधिष्ठिर had his fault lines। ये हम्म क्या नाम है, उनके अंदर में ये वाली कमी थी कि ही वॉज प्रोन टू गैम्बलिंग। हम्म। तो कुछ चीजें थी, लेकिन क्या मैं ही वॉज ए डिवोटी मतलब। हम्म और फिर उन्होंने भी भगवत गीता सुनी थी वहां पे बैटल हम्म ग्राउंड पे। तो आई कैन ओनली क्या नाम है से कि भाई जो वरुण ने कहा ना, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंसाइट कि भाई लॉर्ड हिमसेल्फ वांटेड कि आप हम्म मतलब वो आए। और क्योंकि अगर कोई डिवोटी है और डायरेक्टली लॉर्ड इज इंस्ट्रक्टिंग हिम, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ नॉट ओबेइंग। हम्म, और उसके बाद में लेमेंटेशन फील हो रहा है। बिल्कुल। तो ये बॉडी कंसेप्शन जो उनके अंदर आ गया है ना, वो भगवान का ही क्रिएट किया हुआ है। हम्म जी। यस, आगे पढ़ो। स्त्रीणां मदत् बंधूनां द्रोहो यो अस्सावितो विहो त्विथा कर्म कर्म भृग्रह मेधि यर्नाहम कल्पो व्यपोहितुम। ट्रांसलेशन। I have killed many friends of women, and I have thus caused enmity to such an extent that it is not possible to undo it by material welfare work. ये क्या लिखा हुआ है? The Gramhedis are those whose only business is to perform welfare work for the sake of material prosperity. Such material prosperity is sometimes hampered by sinful activities, for the materialist is sure to commit sins, even unintentionally, in the course of discharging material duties. To get relief from such sinful reactions, the Vedas prescribe several kinds of sacrifices. It is said in Vedas that by performing the Ash, Ashwamedh Yagna, horse sacrifice, one can get relief from even Brahma Hatya, killing of a Brahman. Yudhishthir Maharaj performed this Ashwamedh Yagna, but he thinks that even by performing such uh, yagnas, it is not possible to get relief from the great sins committed. In war, either the husband or the brother or even the father or sons go to fight, and when they are killed, a fresh enmity is created, and thus a chain of actions and reactions increases, which is not possible to be counteracted even by thousands of Ashwamedh yagnas. The way of work karma is like that. It creates one action and another reaction simultaneously and thus increases the chain of material activities, binding the performer in material bondage. In the Bhagavad Gita 9.27-28, the remedy is suggested that such action and reactions of the path of work can be checked only when work is done on behalf of the Supreme Lord. The Battle of Kurukshetra was actually fought by the will of the Supreme Lord Sri Krishna, as it is evident from his version, and only by his will
was Yudhishthir placed on the throne of Hastinapur. Therefore, factually, no sin whatsoever touched the Pandavas, who were only the order carriers of the Lord. For others who declare war out of personal interest, the whole personality lies on them. The whole responsibility lies on them. So for those who declare war out of personal interest, the whole responsibility lies on them. यहाँ पे यहाँ पे मुझे एक चीज ये समझ में आ रही है कि जो युधिष्ठिर के परेशान होने का मेन कॉज ये है कि ये एक तरह से देखा जाए तो इस समय भगवान ने इसको किस उद्देश्य से कराया उस पे इनकी दृष्टि न जाके इनकी दृष्टि अपने पे आके रुक गई है। तो जो इन्होंने इसमें जो यही कहा गया कि इन भगवत गीता द रेमेडी इज सजेस्टेड दैट सच एक्शंस एंड रिएक्शंस ऑफ द पाथ ऑफ वर्क कैन बी चेक्ड ओनली व्हेन वर्क इज डन ऑन बिहाफ ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। तो जो ये गिल्ट युधिष्ठिर के अंदर आ गया है तो उसमें ये बताया जा रहा है कि इसका केवल सोल्यूशन ये है कि यहाँ पे युधिष्ठिर को ये सोचना पड़ेगा कि ये भगवान की मतलब भगवान के आदेश से ये चीज हुआ है और ये चीज मुझे लग रही है। हाँ बिल्कुल ठीक लग रही है। इसमें केवल यहाँ पर ऐसा है कि दो युधिष्ठिर डिड दिस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस येट उनके अंदर में एक 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 वो बॉडी कंसेप्शन रहा कि उन्होंने अपने लिए किया है। ऑल्दो आप समझ रही ना, उन्होंने मतलब उन्होंने तो ऐसा नहीं किया था, लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद जी ने परपोर्ट में गृह में भी जो उन्होंने डिफाइन किया है ना कि जो लोग अपने परिवार के पालन पोषण के लिए जो लोग कार्य करते हैं उसमें जो सिंफुल रिएक्शंस होते हैं उसके लिए वेदों में रेमेडीज बताई गई हैं, वेरियस काइंड्स ऑफ सेक्रीफाइसेस। और जो लोग भगवान के लिए काम नहीं करते तो उनका तो एक्शन रिएक्शन होता है। जैसे कोई राजा कोई किंग जो है बहुत सारे अपनी ग्लोरिफिकेशन के लिए युद्ध करते हैं, उसका तो उनको भार उठाना पड़ेगा, उसका तो उसके पाप के तो भागी होंगे वो। यहाँ पर युधिष्ठिर नहीं है, पर फिर भी उनके अंदर में एक तरह का क्रम बॉडी कंसेप्शन आ गया है, सेल्फ क्रिएटेड। क्योंकि वो कुछ टाइम के लिए, चाहे वो भगवान ने ही मतलब जैसा कहा गया भगवान ने उनको डिल्यूट कर दिया है, तो इसलिए वो ऐसा सोच रहे हैं कि ये सारी किलिंग्स मेरी वजह से हुई है। लेकिन बहुत सारे लेकिन मतलब मेजॉरिटी ऑफ किंग्स जो है वो युद्ध करते हैं, वो गृह मेदी होते हैं कि वो अपने एंग्रेंडाइजमेंट के लिए, अपने परिवार के ताकि वो लोग और भी प्रॉस्पेरिटी में रहे, युद्ध करते हैं। उसका तो उनको भोगना पड़ेगा अनलेस दे डू दोज सेक्रीफाइसेस जो यज्ञ करने उनको चाहिए वो करें। बेस्ट तो यही है कि आप कृष्णा कॉन्शियस रहें, मतलब लेकिन लोग जो है इंद्रियों के कंट्रोल में तो होते हैं, इंद्रियों को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। ये भगवान ने ये वेदों में ये वेरियस टाइप्स ऑफ यज्ञ की वो की थी कि भाई आप ये भी करिए और यज्ञ करके क्रम है अपना शुद्धिकरण भी कर लीजिए। आप समझ रहे ना, मतलब जो उन्होंने पहले शुरू में ही बताया था कि भाई इतना आसान नहीं होगा मनुष्य के लिए कि टू गेट ओवर देयर सेंसेस। लेकिन यहाँ पर युधिष्ठिर के साथ जो हो रहा है वो तो ऐसा ही समझ में आ रहा है बिल्कुल कि भाई वो भगवान ने ही चाहते थे कि वो जाएं भीष्म पितामह के पास, उनसे जाके लर्निंग ले। तो उन्होंने युद्ध जीतने के बाद राज्य ही स्वीकार करने से मना करने लग गए, भगवान के कहने पे भी मना करने लग गए। एक तरह से ये भी एक एंगल ये भी हो सकता है कि मतलब ये समझ में आता है कि भाई जैसे इसी में ना कि भाई जैसे अर्जुन ने तो पूछ के भाई अपने डाउट्स क्लैरिफाई कर लिए, बट अर्जुन हेड ऑफ द फैमिली नहीं थे और अर्जुन किंग भी नहीं थे।
तो इसलिए फिर एक तरह से इनका इस समय पूछना समझ में भी आता है कि भाई मतलब कि भाई किंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो युधिष्ठिर महाराज ही थे ना, किंग तो युधिष्ठिर है ना, तो उन्होंने क्या ये सही किया कि नहीं किया, तो भाई उनको ये ऐसा लगने लग गया है। ऑल्दो वो वाली बात पापा की सही है कि मतलब एक बार आपने भगवान से सुन लिया ना, तो मतलब ये तो, और फिर आपने भगवान के लिए ही अगर जो काम किया है वो तो फिर सही है, तो इसलिए। लेकिन उस सेंस में मुझे ऐसा लगा कि ऐसे ही कि मतलब एज ए किंग वो पूछ रहे हैं, क्लैरिफाई कर रहे हैं। और दूसरी चीज ये भी है, जैसे तुमने अभी जस्ट कहा ना, तो एक बात ये है कि भाई अर्जुन अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच में तो गीता का उपदेश चला है, क्या नाम है, प्रश्न उत्तर की फॉर्म में। बट युधिष्ठिर महाराज के तो प्रश्नों का उत्तर नहीं हुआ था ना वहां पर। एक ये वाला एंगल जो जस्ट नाउ आई थॉट। बट यू सी, वहीं पर ये है कि ऐसे तो सभी हम लोग भी यही कहें, अरे ये ऐसा नहीं है। भगवान ने जो एक बार जो कह दिया था, अगर आप उनके डिवोटी हैं, तो फिर चाहे उन्होंने अर्जुन के लिए कहा, चाहे XYZ के लिए के कहा, लिए वो फिर आपके लिए ब्रह्म वाक्य से भी ज्यादा ऊपर होना चाहिए। देयर शुड बी नो लॉजिक, देयर शुड बी, मतलब मैं बड़ा, मतलब इसके अंदर में मेरे को बड़ा वो है। और कई बार जगह मैंने मतलब वो भी है कि जब भगवान ने कहा है, you take him to be the supreme personality of God, then where is the question of any logic or any मतलब दिस थिंग। ठीक है, आप करते रहिए वो काम, लेकिन उसकी स्कोप है नहीं, है ना। बिल्कुल जी। तो ये लास्ट वाला श्लोक भी पढ़ लो, क्योंकि अब है ना 5 मिनट और। हाँ हाँ? बिल्कुल। 52। यथा पानिकेन पङ्कम्भ शूराय वा शूराकृतं भूतहत्यं तथैवाक्यं न यज्ञैर्मार्तुम् अर्हति। Translation: As it is not possible to filter muddy water through mud or purify a wine-stained pot with wine, it is not possible to counteract the killing of men by sacrificing animals. Purport: Ashwamedh Yajna or Gomedh Yajna, sacrifices in which a horse or a bull is sacrificed, were not, of course, for the purpose of killing the animals. Lord Chaitanya said that such animals sacrificed on the altar of Yajna were rejuvenated and a new life was given to them. It was just to prove the efficacy of the hymns of the Vedas. By recitation of the hymns of the Vedas in the proper way, certainly the performer gets relief from the reactions of sins. But in case of such sacrifices improperly done under inexpert management, surely one has to become responsible for animal sacrifice. In this age of quarrel and hypocrisy, there is no possibility of performing the yajnas perfectly for want of expert Brahmins who are able to conduct such yajnas. Maharaj Yudhishthir therefore gives a hint to performing sacrifices in the age of Kali. In the Kali Yuga, the only sacrifices recommended is the performance of the Hari Nam Yajna inaugurated by Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. But one should not indulge in animal killing and counteract it by performing the Hari Nam Yajna. Those who are devotees of the Lord never kill an animal for self-interest, and as the Lord ordered Arjun, they do not refrain from performing the duty of a Kshatriya. The whole purpose, therefore, is served when everything is done for the will of the Lord. This is possible only for the devotees. Thus end the Bhakti Vedanta purports of the first canto, 8th chapter of the Srimad Bhagavatam, entitled Prayers by Queen Kunti and Parikshit Dev. हाँ, तो ये तो बिल्कुल वो है, मतलब वो तो कि इस युग में नहीं है, इस युग में ये कोई इसमें युग में तो कोई नहीं जिनको ये ढंग से यज्ञ वगैरह करने आते हों, ये उनको पता भी नहीं है। और एक्चुअली तो अगर ये तो अभी हम दूसरी चीजें भी पढ़ रहे हैं, तो मतलब एक एक संस्कृत के श्लोक के कई कई मीनिंग्स निकलते हैं, कई कई उनके इंटरप्रिटेशंस निकलते हैं। somebody has to be very very pious, उतने पायस तो कहाँ हैं लोग। और डेफिनेटली ह्यूमंस को काउंटरैक्ट तो नहीं कर सकते आप एनिमल सैक्रिफाइस से। यहाँ पे जो लास्ट श्लोक में ये बड़ा उन्होंने इसको परपोर्ट में प्रभुपाद जी ने एलेबोरेट किया है।
युधिष्ठिर महाराज जो है ना, उन्होंने बड़ा क्लियर उनको ये पता चल गया कि भाई ये जो है मतलब ये अश्वमेध यज्ञ का पर्पस वही है, सब कुछ ठीक है कि अश्वमेध यज्ञ का पर्पस है कि टू गिव द न्यू लाइफ टू द एनिमल सैक्रिफाइस्ड, and it is as per shastras, and क्या नाम है, the Brahmins are also competent in those times, yet he feels कि उन्होंने जो एग्जाम्पल दिया है कि जिस तरह से मडी वाटर को मड से क्लीन नहीं कर सकते हैं, और जिस तरह से क्या नाम है शराब से भरे हुए पॉट को शराब से ही नहीं क्लीन कर सकते हैं, उसी तरह से एक जो युद्ध में किए हुए किलिंग को इससे नहीं क्लीन कर सकते हैं। अब उन्होंने ये ऐसा फील किया है और इसको यहाँ पर कहा है। अब उसको प्रभुपाद जी ने अपने परपोर्ट में जो बड़ा बिल्कुल क्लियर कट, और जितना हम लोगों ने पढ़ा है बड़ा क्लियर कट आ गया है कि अब आज की डेट में जो वेदों में लिखे हुए जो रेमेडीज है ना, दे आर एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल, मतलब वो हो ही नहीं सकते हैं, बिकॉज सच प्योरिटी इज नाइदर इन द मटेरियल ऑफ सैक्रिफाइस, जो मटेरियल में जो आहुति दी जाती है जिन सामानों की, वो उनमें प्योरिटी है, ना ही जो वैदिक हिम्स क्रम है कहने वाले ब्राह्मणों में इतनी प्योरिटी है कि वो उन हिम्स को ठीक से कर सके उसको, बिल्कुल भी, है ना। तो फिर इस तरह के यज्ञ जो आप अभी कर्मकांड जितना भी होता है ना इस कलयुग में, वो केवल जो है ये ब्राह्मणों की अपनी कर्म है, मतलब वो पैसे बनाने की स्कीम ही समझी जाएगी। और महाप्रभु ने आकर के इसीलिए सारे के सारे यज्ञों को महामंत्र में डाल करके दिया हम लोगों को कि भाई आप जो है, अब आपके बड़े सिंपल प्रिंसिपल्स हैं टू 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 कर्म है, मतलब सर्व द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। क्या है वो प्रिंसिपल्स? ये कि भाई आप जो है कर्म है, ये 4 प्रिंसिपल्स कर्म है करें। नो मीट ईटिंग, नो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स विद वुमन, एंड नंबर 3 नो गैम्बलिंग, एंड चौथा क्या नाम है, नो इंटॉक्सिकेशन। तो ये चारों चीजें आप फॉलो करें, और ये क्या नाम है, मतलब आप जो है हर जो भी काम करें, मतलब कोई भी मतलब कार्य करें उसको कृष्ण भावना भावित होकर के करें कर्म है। और ये क्या कहते हैं वो करें, ये जप करें और भगवान की सेवा करें। ये जो इन्होंने कहा ना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, वो सारी चीजों में से उन्होंने ये भी कह दिया कि भाई चाहे एक ही करो आप, कोई बात नहीं, सारे ना भी कर पाओ आप एक ही करो उसमें, तब भी आपका ये हो सकता है। तो बस यही जो है यहाँ पे प्रभुपाद जी ने फिर से उसको एम्फसाइज किया है कि भाई इस कलयुग में यही रेमेडी है, यही रेमेडी है। वही 2 श्लोक जो हैं ब्रह्म, उसके ब्रह्म पता नहीं किस नारदी पुराण के हैं क्या है, कलेर दोषा, ये एक तो कलेर दोषा निधे 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 राजन, ये तो यहीं का है, भागवतम में श्रीमद् भागवतम में ही है कि मतलब कलयुग में इसमें कई अवगुण हैं, बट एक ही गुण अच्छा है कि इसके अंदर में आप भगवान का नाम ले करके अपना कल्याण कर सकते हैं। हाँ, और वो दूसरा वाला श्लोक भी है कि क्या नाम है, कलयुग में मनुष्य का एक ही रास्ता है, हरे रामा हरे नामा ही केवलम कलाव नष्टि, मतलब कलयुग के से निजात पाने का कलाव नष्टि नष्टि है घरती अन्यथा, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। यही यहाँ पे प्रभुपाद जी ने परपोर्ट में इसको कंक्लूड किया है। मतलब यस, आई डोंट नो क्या मैं, मतलब यही ऐसा लगता है, लगता क्या ऐसा है ही है जी। तो ये जो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर खत्म हुआ है एक तरह से, कुंती माता की प्रेयर से। और अब वो लोग जो है वहां पे भीष्म देव के
उनके पास जाएंगे फॉर द टेकिंग द लर्निंग। ये देखो नेक्स्ट चैप्टर में द पासिंग अवे ऑफ भीष्म देवा इन द प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड कृष्णा, है ना, ये नेक्स्ट चैप्टर है। तो दैट्स गुड लैंडमार्क। और कभी कभी अगर टाइम मिले, जैसे तुम कह रही थी ना जी कि बीच में तुम कह रही थी कि भाई अभी हम लोग को बड़ा टाइम लगेगा एंड ऑल दैट, तो अभी मतलब मेरा सजेशन है वैसे क्या नाम है जी कि अब मतलब सांसारिक चीजों को, इधर उधर की चीजों को मतलब अपना जो स्पेयर टाइम है ना, हाँ उसमें थोड़ा बहुत इन्हीं इन्हीं को देखो, दोबारा देखो, या इन्हीं बुक्स को पढ़ो, या इन्हीं वो जी ज्यादा ठीक रहेगा हम्म, टू टू टेक मेक यू मोर एंड मोर कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्णा बिल्कुल कॉन्शियस, है ना। क्योंकि जी 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 ये जो है ना मतलब यस, मतलब उसके अंदर में रिपीटेडली इसी को देखो, या उनके पुराने लेक्चर्स को सुनो, या इसको जितना भी आप अपने सेंसेस को भगवान की उसमें लगाएंगे, फिर वही अच्छा है। बिल्कुल हालांकि इट इज नॉट इजी, बट फिर भी हम्म प्रयत्न तो कर ही सकते हैं ना, बिल्कुल, क्योंकि हम लोग तो ये भी अब इजी बनाना है। हम्म इट इज नॉट इजी बट स्टिल विल हैव टू मेक इट इजी। भगवान मदद करेंगे ना फिर इसमें। जी बिल्कुल ही विल हेल्प यू, ही विल जी हेल्प अस। वो, और वो हम्म हेल्प किसकी फॉर्म में आएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। हम्म तो यस, आई थिंक ना आज तुम लोग को काफी लेट करा दिया हमने, है ना। नहीं चले तो ठीक। हाँ, है ना, तो हम्म अभी समाप्त करेंगे। हाँ, जी चलो तुम लीड करो, क्या नाम है, यस, तुम बोलो पहला मतलब हरे मौसी कृष्णा। मौसी अच्छा आप बोलिए पहले, तो जी आप जी। लीड करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा हरे, हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा हरे, हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा हरे, हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। थैंक यू।